Am I audible to all those who are interested in lecture? Okay. So today it's my kind request due to lack of time, my speed will be more today. So all of you please be attentive, at least those who are interested in lecture. Okay, you all please listen attentively. Those who are not, they can wander here and there. Choice is yours. Okay, so today we are going to talk about food hygiene. Okay, one more name now we will give to food. We are going to call food as vehicle. Okay, we are going to call food as vehicle, and being vehicle, being part of our environment, there is possibility that this food may get contaminated. Okay, and contaminated food, if it is consumed, it may result either in foodborne diseases or even it can cause food poisoning. Okay, so what different stages are there at which there is possibility of food contamination? Okay, so right from its production, contamination of food may occur during production, during food processing, okay, during transportation of food, or whenever we are storing the food, okay, during storage, during cooking processes, during serving, and if hygiene is not maintained, even it may occur during consumption, okay, through contaminated fingers. So there are several things at which contamination of food can occur, and consumption of contaminated food, it results in foodborne diseases, it results in food poisoning. Okay, so now our aim behind this, okay, behind maintaining food hygiene is to prevent food poisoning, and second is to prevent foodborne diseases. Okay, so ideally we are supposed to pay attention to different things. Okay, but since milk is one of the most important food, today we are going to talk about milk hygiene. Okay, so regarding milk, first thing what you are supposed to understand is how milk can get contaminated. Okay, what are the various sources by which milk can get contaminated? Okay, तो यहाँ पे most important thing है dairy animals. Okay, dairy animals में cow, buffalo, or even it can be goat also. If they are infected, okay, possibility of milk contamination is there. Second is role of human handlers. Okay, so in India you might have seen at every place milking machines are not available, and humans, they are involved in milking process. Okay, so their personal hygiene, their hand hygiene will matter a lot. Secondly, the vessels. Okay, if vessels are contaminated, there is possibility of milk contamination. Another important common practice what you observe in India is addition of water. Okay, so water, whenever it is added to milk, okay, there is possibility that if this water is contaminated, okay, it may cause contamination of the milk. Okay, another important thing, environmental insanitation hai, house flies hai. Okay, house flies already we have studied in medical entomology. Okay, these are mechanical carriers. Okay, so they can carry different pathogens to the milk and milk may get contaminated. Secondly, dust. So here I am talking about that dust which is formed out of the droplets. Okay, so the persons which are having respiratory infections, whenever they cough, sneeze, different size of droplets is there. Okay, तो कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. The droplets which are having larger size, that will get settled on the ground. Okay, वो ground पे settle हो जाएंगे या different surfaces के ऊपर settle हो जाएंगे, and due to wind or due to human activities like brooming, okay, it can again become airborne. Okay, वापस में air में आ जाएंगे, and that can further, if gets contaminated with the milk. Okay, if get mixed with the milk, that can cause contamination of the milk. Okay, so what we said, एनिमल्स है, ह्यूमन हैंडलर्स है, वेसल्स है, वाटर अगर कंटामिनेटेड है तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन कैसा है, वहां पे डस्ट है या नहीं है. It's my kind request, those who will join later, I won't admit them. Okay, so anyone please, none of you will message me.
I won't permit after 5 minutes anyone entering in my lecture. Yeah. So here what I'm saying is कैसे मिल्क कंटामिनेशन होता है ये आपको पता चला है. ओके, व्हाट कैन बी द वेरियस वेज फॉर दिस. Now we will pay attention to milk-borne diseases. Okay, so this is another most frequently asked question, either for 2 marks or 5 marks. Okay, so milk-borne diseases we are going to classify as per the classification which is given by Joint FAO WHO Expert Committee on Milk Hygiene. ओके, तो यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी है. एक ऐसे इन्फेक्शंस है जो एनिमल्स में है एंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू मैन. ओके, सो सिंपली वी कैन से जूनोटिक. और सेकेंड जो इन्फेक्शंस है विच आर प्राइमरीली सीन इन मैन. ओके, एंड that may get transmitted through milk. Okay, so two possibilities are there. तो सबसे पहले जो है these are the things that you are supposed to memorize. Okay, तो what diseases are there which are seen in animals and may get transmitted to man. Okay, so it's tuberculosis. Please pay attention here. We are talking about bovine tuberculosis. Okay, secondly it can be brucellosis. Different streptococcal infections may get transmitted. Okay, salmonellosis already we had finished. Q fever already we had finished. Okay, food poisoning, staphylococcal food poisoning, these things already we had finished. Okay, so tuberculosis है, brucellosis है, streptococcal infections है, staphylococcal फूड पॉइजनिंग है, साल्मोनेलोसिस है, क्यू फीवर है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, और जिनका इंसिडेंस कम है, जो लेसर इंसिडेंस है उसमें काउपॉक्स हो सकता है, फुट एंड माउथ डिजीज हो सकता है, एंथ्रैक्स हो सकता है, लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, या फिर टिक बॉर्न एनकेफेलाइटिस हो सकता है. ओके, तो दीज आर द डिजीजेस ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस एंड लेसर इंपॉर्टेंस विच मे गेट ट्रांसमिटेड टू मैन फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दोज डिजीजेज जो प्राइमरीली हमें ह्यूमन में दिखाई देंगे. ओके, एंड थ्रू वेरियस चैनल्स मिल्क में गेट कंटामिनेटेड एंड कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड मिल्क विल रिजल्ट इन दीज इन्फेक्शंस. ओके, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइफॉइड फीवर, पैराटाइफॉइड फीवर. ओके, शिगेलोसिस है, कॉलरा है. ओके, डायरिया में ऑकर इफ मिल्क गेट कंटामिनेटेड विथ एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई. ओके, सेकेंडली नॉन डायरियल डिजीजेस में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस हो सकते हैं. ओके, ट्यूबरकुलोसिस है, कुछ एंटेरोवायरसेस है, वायरल हिपेटाइटिस है. तो ये जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस है एटलीस्ट दीज टू हेडिंग्स. ओके, 1 और 2 के आगे जो है वो आपके आंसर में आना चाहिए एंड डिपेंडिंग ऑन मार्क्स द क्वांटिटी यू आर सपोज टू ऐड टू योर आंसर. ओके, तो अभी आपको ये पता चला है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मिल्क कंटामिनेट हो सकता है. ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वॉट एवर मिल्क दैट पीपल ड्रिंक इट शुड बी सेफ. ओके, तो हम जो मिल्क लेते हैं हमारे डाइट में वो सेफ होना चाहिए. ओके, तो बहुत सारे चीज़ें हैं रिलेटेड टू दिस, उसे हम कैसे सेफ बना सकते हैं. तो अगर आपको सोर्सेस पता है तो फर्स्ट थिंग वी कैन फोकस ऑन दीज थिंग. ओके, तो अगर जो एनिमल्स है एनिमल हस्बेंड्री में, ओके, तो मिल्किंग एनिमल्स जो है वो हेल्दी होने चाहिए. ओके, प्रीमाइसेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट दैट शुड बी सैनिटरी. ओके, तो हाउस फ्लाई कम हो जाएगा वहाँ पे. तो जहाँ पे हम ॲनिमल्स रखते हैं थोडक्यात गायींचे म्हशींचे जे गोठे आहेत ते स्वच्छ पाहिजेत. सेकंडली मिल्क वेसल्स जो हम यूज़ करते हैं वो क्लीन होने चाहिए, आइडियली स्टराइल होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट क्लीन होने चाहिए. मिल्क हैंडलर्स को हमें हैंड हाइजीन सिखाना है. ओके, दे शुड फॉलो अप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन. ओके, इफ पॉसिबल वी कैन यूज मिल्किंग मशीन्स. ओके, जहाँ पे एनिमल्स है, जहाँ पे मिल्किंग किया जाता है वहाँ का वाटर सप्लाई, सेफ वाटर सप्लाई होना चाहिए. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. इसके ऊपर कंट्रोल रखना डिफिकल्ट है. ओके, सो दीज थिंग्स बिकम्स डिफिकल्ट. सो व्हाट वी विल ट्राई टू पे अटेंशन. तो इज देयर एनीथिंग just by this measure we can prevent milk-borne diseases in community. ओके, तो अगर हमें कम्युनिटी में ये डिजीजेस को प्रिवेंट करना है तो हमारे पास कौन सा ऐसा पब्लिक हेल्थ मेजर है. ओके, तो डेफिनेटली वी आर हैविंग वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट
public health measure, okay, by which we can prevent milk-borne diseases. Okay, so pasteurization of milk, another most frequently repeated question, either for 2 marks or for 5 marks. Okay, so pasteurization of milk, इसमें हम क्या करते हैं, इसका definition आपको by heart करना है. Okay, तो it is heating of milk to such temperature and for such periods of time which are required to destroy any pathogens that may be present at the same time. It should cause minimal changes in composition, flavor and nutritive value. Okay, तो इसमें हमें क्या करना है, try to understand. We are supposed to pay attention to two important things which are involved in this process. Okay, तो सबसे पहले हमें मिल्क को हीट करना है, उसके बाद उसे रैपिडली कूल करना है. तो क्या है, दो ही कीवर्ड है, हीटिंग है, कूलिंग है. ओके, तो हीटिंग कौन से टेम्परेचर को करना है, आइडियली दैट टेम्परेचर शुड बी सेट इन सच अ वे सो दैट पैथोजेंस अगर प्रेजेंट है मिल्क में दैट शुड गेट डिस्ट्रॉयड. ओके, तो पैथोजेंस डिस्ट्रॉय होने चाहिए. एट द सेम टाइम न्यूट्रिटिव वैल्यू है, कंपोजिशन है, ये अफेक्ट नहीं होना चाहिए. ओके, सो दीज आर द थिंग्स वेयर वी आर सपोज टू पे अटेंशन. नाउ these 3 methods, okay, you must know. This is must know point. Okay, so 3 methods of pasteurization are there which are given in K-Park. Okay, so first is Holder method, second is HTST method and third is UHT method. Okay, तो होल्डर मेथड में आपको अभी पता है हमें दो चीजें करनी है. एक तो टेम्परेचर एडजस्ट करना है. ओके, कुछ समय तक मिल्क को हीट करना है, वापस उसे कूल करना है. तो you are supposed to understand the temperatures and you are supposed to understand the duration, okay, required either for heating or required for cooling. Okay, तो जो होल्डर मेथड है वो जनरली दिस इज यूज्ड इन रूरल एरियाज. ओके, रूरल एरियाज में यूज करते हैं. यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज है दिस इज 63 to 66 डिग्री सेल्सियस. ओके, 63 66 के बीच में टेम्परेचर हम एडजस्ट करते हैं. वी आर सपोज टू हीट फॉर 30 मिनट्स. ओके, 30 मिनट्स तक हमें हीट करना है. 30 मिनट्स तक वी आर सपोज टू हीट एंड वापस उसे कूलिंग करना है 5 डिग्री सेल्सियस तक. ओके, 5 डिग्री सेल्सियस तक वी आर सपोज टू कूल इट. सो डोंट फॉरगेट होल्डर मेथड के लिए नंबर्स 63 66 डिग्री सेल्सियस. ओके, ड्यूरेशन है 30 मिनट्स. ओके, कूलिंग का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, सेकेंड इज HTST मेथड. इसका फुल फॉर्म है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड. ओके, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड. हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में हमें क्या देखना है, यहाँ पे देर आर 2 T's दैट यू कैन सी. ओके, 2 T है इसमें. तो पहला T है टेम्परेचर के लिए, दूसरा है टाइम के लिए. ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई है और टाइम रिक्वायर्ड इज शॉर्ट, क्योंकि होल्डर मेथड में हमने क्या देखा, आधा घंटे तक हमें रुकना है, आधा घंटे तक मिल्क को हीट करना है. तो ये रैपिडली होने वाला प्रोसेस है HTST. ओके, सो डोंट फॉरगेट फुल फॉर्म ऑफ दिस हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड. ओके, तो इसे हमें मिल्क को हीट करना है जो टेम्परेचर है 72 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है. ओके, एंड मिल्क इज हीटेड ओनली फॉर 15 सेकेंड्स. ओके, 15 सेकेंड्स तक ही उसे हम हीट करेंगे एंड रैपिडली इट इज कूल टू 4 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे 3 नंबर्स 72, 15 seconds and 4 degree Celsius. Okay, so whenever we are having large quantity of milk available, that time we are supposed to use HTST method. Okay, और एक नाम है जिनको याद रखना है वो रख सकते हैं HTST method. It is also called as flash method. Okay, थर्ड मेथड है हमारे पास UHT. तो यहाँ पे भी T जो है वो टेम्परेचर के लिए है. ओके, UHT मेथड इट स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर. ओके, ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड है. इसमें हम क्या करते हैं, मिल्क को 2 स्टेजेस में हीट करेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू हीट मिल्क इन 2 स्टेजेस. ओके, दोनों भी स्टेजेस में 2 चीजें कॉमन है. एक तो टेम्परेचर.
ओके, दोनों स्टेजेस में 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें रखना है। ओके, दोनों में वी आर हीटिंग इट ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स, ओके, फॉलोड बाय कूलिंग। ओके, तो 3 थिंग्स वी सेड कॉमन, 125 डिग्री सेल्सियस कॉमन है, फ्यू सेकेंड्स तक ही हमें हीट करना है, वापस हमें रैपिडली कूल करना है। तो डिफरेंस क्या है? Where is the difference? The difference it is mainly related in second stage. Okay, तो second stage में milk को हम heat करते हैं, it is heated under pressure. Okay, it is heated under pressure, so that is the only difference. So this is UHT method. यहाँ पे जो number है that is 125 degrees Celsius in first stage, and in second stage same temperature but milk is heated under pressure. Okay. What are various benefits of pasteurization of milk? Okay, तो LAQ आता है 10 मार्क्स के लिए, तो यू आर सपोज टू कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट थिंग, विद द हेल्प ऑफ पास्चराइजेशन वी कैन प्रोड्यूस सेफ मिल्क। ओके, तो इट विल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सेफ मिल्क। सेकेंडली, इट किल्स अबाउट 90% ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, तो जो पैथोजेंस है वो कील होने वाले हैं, जैसे कि क्यू फीवर का पैथोजन है कॉक्सिएला बर्नेटी, ट्यूबरकल बैसिला, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, this is pasteurization of milk. It is most important preventive measure which helps to prevent milk borne diseases. Okay, तो milk borne diseases को हमें prevent करना है, तो हमारे पास जो public health measure है, this is pasteurization of milk. Okay, so don't forget, this is preventive measure. If at all you can mention its significance related to public health, well and good. Okay, so there are various benefits of ड्रिंकिंग पास्चराइज्ड मिल्क, दैट्स व्हाट आई कैन से राइट नाउ। लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। तो लिमिटेशंस अगर हम देखते हैं तो हियर यू आर सपोज टू पे अटेंशन टुवर्ड्स बैक्टीरियल स्पोर्स। ओके, तो बैक्टीरियल स्पोर्स दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, सो दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। ओके, डेफिनेशन में हमने क्या बोला कि मिल्क को हीट करेंगे, कूल करेंगे, तो वाई देर इज नेसेसिटी ऑफ कूलिंग। ओके, कूल हमें क्यों करना है? रूम टेम्परेचर को उसे हमें क्यों नहीं रखना है? ओके, सो यूजुअली it is very essential that after pasteurization, after heating the milk, it should be rapidly cooled and it should be kept cool till it reaches to consumer. ओके, तो जब तक पास्चराइज्ड मिल्क हमारे घर में हमारे पास नहीं आता है तब तक इसे हमें कूल रखना है। दिस इज एसेंशियल बिकॉज हमने क्या बोला, 100% पैथोजन नहीं डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ओके, तो रूम टेम्परेचर को अगर हम रखते हैं तो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीग्रोथ ऑफ दीज पैथोजेंस। ओके, तो पैथोजेंस रीग्रोथ हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है? इमीडिएटली रैपिडली हमें कूल करना है। ओके, तो कूलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आया। अभी हमने मिल्क पास्चराइज किया है। ओके, सो ये पास्चराइजेशन ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें चेक करना है। ओके, सो फॉर दैट डिफरेंट टेस्ट्स आर देयर। तो सबसे पहले है फॉस्फेटेज टेस्ट। ओके, तो फॉस्फेटेज टेस्ट में अभी पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो पास्चराइजेशन ठीक से नहीं हुआ है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? थोड़ा मिल्क पास्चराइज किया है, उसमें थोड़ा रॉ मिल्क ऐड कर दिया है। ओके, तो अगर ये हमें पता करना है तो वी कैन यूज फॉस्फेटेज टेस्ट। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी बेसिक थिंग। फॉस्फेटेज जो है, दिस इज फॉस्फेटेज इज व्हाट? दिस इज द एंजाइम, we can find this enzyme in raw milk. Okay, तो ये phosphatase enzyme raw milk में होता है। During the process of pasteurization, this enzyme is destroyed. Okay, तो pasteurization में ये destroy होगा। तो अभी हमें क्या ढूंढना है? पास्चराइज्ड मिल्क का सैंपल लेंगे, उसमें फॉस्फेटेज है या नहीं है। अगर है तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो पास्चराइजेशन ठीक से नहीं हुआ है, दूसरी पॉसिबिलिटी है रॉ मिल्क को उसमें ऐड किया है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास टेस्ट सैंपल रहेगा मिल्क का। ओके, उसमें डाइसोडियम फॉस्फेट ऐड करते हैं। ओके, और ब्लू कलर आता है तो टेस्ट पॉजिटिव है। ओके, तो टेस्ट के डिटेल के पार्क ने नहीं दिए हैं, सिर्फ सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए।
सेकेंडली हमें क्या देखना है, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। ओके, तो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट से हमें क्या पता चलता है, बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी कैसी है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने जो लिमिट दिया है बैक्टीरियल काउंट का, सो दिस इज 30,000 पर ml। ओके, तो ये लिमिट वेस्टर्न कंट्रीज का है। सेकेंड हम जो देखेंगे कॉलीफॉर्म काउंट। ओके, तो कॉलीफॉर्म अगेन मिल्क हमने पाश्चराइज किया है, वो पाश्चराइजेशन ठीक से हुआ है या नहीं है, या फिर मिल्क का कंटामिनेशन हुआ है कॉलीफॉर्म्स के साथ। ओके, कॉलीफॉर्म्स आर द कॉमनेस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैन फाइंड इन फीसिस एंड देर आर वेरियस चैनल्स बाय विच आर फूड इंक्लूडिंग मिल्क मे गेट कंटामिनेटेड। ओके, तो यहाँ पे हमारा फोकस कहाँ पे है, कॉलीफॉर्म काउंट। ओके, तो उसमें कॉलीफॉर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं ये हमें देखना है। ओके, तो इसके लिए जो गाइडलाइन दिया है, आइडियली इट शुड बी एब्सेंट। ओके, तो मिल्क में ये नहीं होने चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट के लिए थोड़ा गाइडलाइन अलग है, लेकिन कॉलीफॉर्म काउंट के लिए डेफिनेटली वॉट एवर मिल्क दैट वी कंज्यूम इफ इट इज पाश्चराइज्ड इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कॉलीफॉर्म। ओके, और एक टेस्ट है एडिशनल है केपाक, I think Kepak has not mentioned about this test. This is methylene blue test. Okay, तो बैसिलाई जो बैक्टीरिया है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुए हैं या नहीं ये हमें पता चलेगा। ओके, उसके लिए हम मेथिलीन ब्लू टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो टेस्ट सैंपल हमें लेना है, उसमें मेथिलीन ब्लू डालना है, इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेशन के बाद अगर कलर चेंज हो जाता है तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ कंटामिनेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इसके साथ साथ मीट हाइजीन है, वेजिटेबल्स है जो इनडायरेक्टली हमने डिस्कस किए हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम वी आर प्रोसीडिंग टू another important point. Okay, another important question which is frequently asked for 2 marks. Okay, food additives. Okay, तो food additives के बारे में हम पढ़ेंगे। food additives, basically food additives where we can find food additives, they are present in different processed food। तो जितना भी processed food आपको उनके नाम याद है उसमें ये food additives रहते हैं। ओके, तो food additives का definition क्या है, what is the definition? So please listen carefully. These are non-nutritious substances. Okay, we are saying these are non-nutritious substances which are added intentionally to food. Okay, generally they are added in small quantity to improve its appearance, flavor, texture and storage properties. ओके, तो हमने क्या बोला कि जो फूड एडिटिव्स है सबसे पहले आपको यह समझना है वो नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस है जो हम फूड में डाल रहे हैं। ओके, क्यों डाल रहे हैं, हमें उसका अपीयरेंस अच्छा करना है, उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, फ्लेवर अच्छा होना चाहिए, और प्रोसेस्ड फूड ओके उसके प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें बढ़ानी है, स्टोरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ध्यान देना है। सो फॉर दैट रीज़न दीज फूड एडिटिव्स दे आर एडेड पर्पसफुली। ओके, तो हमने पर्पसफुली ऐड किया है। Once again I am repeating, these are non-nutritious substances. These are non-nutritious substances. तो जो कुछ भी substances add किए जाते हैं इसमें, okay, whatever food additives which are used, we are classifying them into two. Okay, so first category food additives and second category food additives. Okay, तो जो first category food additives है इसमें हम we are including those agents generally which are safe for human consumption। तो इसमें जो आते हैं इनका कंजम्पशन हमारे लिए सेफ है। ओके, तो से फॉर एग्जांपल कलरिंग एजेंट्स लाइक टर्मरिक। ओके, तो हम घर में भी टर्मरिक यूज़ करते हैं। सैफरॉन, तो अगर हम सैफरॉन यूज़ करते हैं, टर्मरिक यूज़ करते हैं कलरिंग के लिए, ओके, तो वी आर कॉलिंग इट एज फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंडली फ्लेवरिंग एजेंट जैसे वैनिला इसेंस है या फिर अदर इसेंस जो है इसे हम यूज़ करते हैं, या फिर स्वीटनर्स है। ओके, सैकरीन जैसे स्वीटनर्स है,
प्रिजर्वेटिव्स है, जैसे कि बेंजोइक एसिड है, ओके, सॉर्बिक एसिड है, ओके, सो प्रिजर्वेटिव्स लाइक दीज एग्जाम्पल्स, ओके। और अगर आपने प्रोसेस्ड फूड का रैपर ठीक से पढ़ा है तो यू माइट हैव केम अक्रॉस मेनी टाइम्स प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो दीज आर एसिडिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स, ओके। तो साइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सैफरॉन है, टर्मरिक है, वैनिला एसेंस है, ऐसे जो फूड एडिटिव्स है ये फर्स्ट कैटेगरी में हमने इसे इंक्लूड किया है। दीज आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर हेल्थ, ओके, जनरली दे आर सेफ। तो सेकेंड कैटेगरी में क्या आएगा? सेकेंड कैटेगरी में इट मेनली इंक्लूड्स दी कंटामिनेंट्स। इसमें जो आते हैं वो कंटामिनेंट्स है। तो वो कैसे आ सकते हैं? ओके, तो सबसे पहले जो फार्मिंग के प्रोसेसेस है हमारे, ओके, फार्मिंग में अगर फार्मर्स ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, ओके, सो दीज कैन बी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ओके, दैट आर लाइकली टू बी प्रेजेंट, ओके, तो उन्हें भी हम बोलेंगे फूड एडिटिव्स, लेकिन इसे हमने इंक्लूड किया है सेकेंड कैटेगरी में, ओके। दूसरा, जो मटेरियल पैकेजिंग के लिए यूज किया गया है, ओके, तो समटाइम्स द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द पैकेजिंग मटेरियल दे मे एंटर इनटू द फूड, ओके, तो इन्हें भी हम सेकेंड डिग्री में इंक्लूड करेंगे, ओके। या फिर कुछ हार्मफुल फूड एडिटिव्स है, जैसे कि नाइट्राइट्स है, नाइट्रेट्स है, ओके। प्रोसेस्ड फूड में अगर नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स को इंक्लूड किया है, ओके, तो अगर किसी को विटामिन सी का रोल याद है तो हमने देखा था कि विटामिन सी इट इज हैविंग प्रोटेक्टिव एक्शन अगेंस्ट स्टमक कैंसर, ओके। तो अगर प्रोसेस्ड फूड में सेकेंड कैटेगरी के फूड एडिटिव्स है जिसमें नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स को यूज किया है, ओके, तो in GIT these may produce nitrosamines, and nitrosamines they are having carcinogenic effect, okay. So definitely the food additives which are included in second category are harmful. Please permit me to end this meeting, and only interested candidate rejoin. Others can leave, you are free to leave.
Am I audible? Thank you. Thank you. Yeah, I think we are discussing food additives. Am I right? Yeah, so it is very essential that there must be some control over these things, okay? Whatever different food additives that are added during food processing. Okay, so India में basically this control it is kept by government of India. तो जो भी rules and regulations है, जो भी standards है, they are revised from time to time. And the most important act here you are supposed to know is PFA Act. Okay, so we are talking about PFA Act. This is Prevention of Food Adulteration Act. Okay, so we are talking about prevention. We are talking about Prevention of Food Adulteration Act. Chavan Priyanka, mute yourself. Chavan Priyanka, am I audible to you? Yeah, so this is Prevention of Food Adulteration Act. Okay, so there are so many things which are concerned with the act, just few we will see. Okay, so when we are going to consider adulteration, okay, so if there is use of non permitted food additives, okay, जो food additives को permission नहीं है वो अगर डाला है, okay, उसका जो परमिसिबल लिमिट है वॉट एवर फूड एडिटिव्स आर देयर विच आर रिकमेंडेड फॉर यूज इट शुड बी एडेड विद इन परमिसिबल लिमिट. तो ये परमिसिबल लिमिट अगर कट बढ़ जाता है, ये अगर क्रॉस होता है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज फूड एडल्ट्रेशन. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज लेबलिंग. ओके, तो जो कुछ भी प्रोसेस्ड फूड है उसका लेबलिंग इट शुड बी एक्यूरेट लेबलिंग. ओके, तो वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी है. Okay, so what different additives are added, it should be mentioned on the label. Okay, तो label पढ़ के हमें पता चलना चाहिए इसमें फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी के फूड एडिटिव्स ऐड किए हैं या नहीं. ओके, तो जो कुछ भी फूड आर्टिकल्स है जो आर्टिफिशियली कलर्ड है उसके ऊपर इट इज इसेंशियल टू मेंशन आर्टिफिशियली कलर्ड फूड्स. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन Act. Another 2-mark question which is frequently asked is food fortification. Okay, so food fortification, don't forget this is most important public health measure. Okay, इसे हम बोलते हैं this is public health measure, and with the help of food fortification we can prevent or we can control सम न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स. ओके, तो यहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या है, जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स है उसे प्रिवेंट करना है या फिर कंट्रोल करना है. उसके लिए व्हाट पब्लिक हेल्थ मेजर वी यूज, दिस इज फूड फोर्टिफिकेशन. दिस इज फूड फोर्टिफिकेशन. तो इसका जो डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन इट इज द प्रोसेस वेयर बाय न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू फूड relatively in small quantities to maintain or improve the quality of the diet of a group, of a community or of a population. तो यहाँ पे हमारा इंटेंशन प्रिवेंशन कंट्रोल तो आपको पता ही है. ओके, तो हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का या फिर पूरे पॉपुलेशन का. ओके, वी आर सपोज टू पे अटेंशन टू मेंटेन the quality of their diet or to improve the quality of their diet. तो ये हम कैसा करते हैं, what we add here, we are adding nutrients. okay, तो फूड एडिटिव्स में हमने नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस डाले थे, यहाँ पे what we are adding is nutrient. ओके, तो न्यूट्रिएंट जिसमें डालते हैं to that we are going to call as vehicle. ओके, तो जो vehicle है उसके कुछ फीचर्स होने चाहिए. ओके, सो जो व्हीकल हम यूज करेंगे फोर्टिफाइड फूड्स के लिए, ओके, इट शुड बी पार्ट ऑफ डाइट ऑफ द पीपल. ओके, देयर शुड बी कंसिस्टेंट कंजम्पशन ऑफ दिस व्हीकल. ओके, तो रेगुलर डाइट में ये व्हीकल आना चाहिए लोगों के. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग what we can say, the amount which we are going to add of the nutrient to the vehicle.
ओके, इट शुड प्रोवाइड इफेक्टिव सप्लीमेंट। ओके, तो कितना अमाउंट हमें डालना है, तो जो सप्लीमेंटेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होनी चाहिए। ओके, सो दैट शुड बी फुलफिल्ड एंड एट द सेम टाइम it should not have any hazardous effect. Okay, even if that vehicle, that food is consumed in excess quantity. Okay, तो fortification की वजह से जो vehicle हमने यूज किया है, वो vehicle कोई person ज़्यादा लेता है, तो that should not affect health. Okay, another important thing, it should not change the consistency, smell, taste, इसमें change नहीं होना चाहिए. Okay, and the most important, it should be economical. ओके, तो जो कुछ भी फूड हम 45 करते हैं, इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव. ओके, तो ये इकोनॉमिकल होना चाहिए. ओके, देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स. ओके, तो जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, वी कैन टॉक अबाउट iodized salt. Already we have talked this in goiter control. Okay, we can talk about nutritional anemia. Nutritional anemia को हमें कंट्रोल करना है, तो अगेन हमारे पास जो व्हीकल है वो सॉल्ट है, जो न्यूट्रिएंट है हम डाल रहे हैं वो आयरन है. ओके, सो फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट विथ आयरन, फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट विथ आयोडीन. ओके, फोर्टिफिकेशन ऑफ वनस्पति घी विथ विटामिन ए और विटामिन डी. ओके, एंड इवन वाटर वी कैन यूज एज व्हीकल. तो वाटर को भी हम व्हीकल यूज कर सकते हैं. ये कहाँ पे हम यूज करते हैं? वी आर यूजिंग दिस टू प्रिवेंट डेंटल केरीज. ओके, तो डेंटल केरीज अगर हमें प्रिवेंट करना है, तो पानी में हमें क्या डालना है? फ्लोरीन. ओके, सो दिस इज एडिशन ऑफ फ्लोरीन. देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स दैट आर कंसर्न विद दिस. तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सेपरेटली पूछे गए थे कि explain food additives and fortification. Okay, but this time, for the first time, the question which is asked as difference. Okay, तो first time उन्होंने difference पूछा है. तो difference के लिए अगर difference 2 marks के लिए आता है, तो you are supposed to mention at least 4 points. ओके, तो दोनों का डिफरेंस अगर हम देखते हैं, तो फूड एडिटिव्स में हम क्या ऐड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए. फूड फोर्टिफिकेशन में हम क्या ऐड करते हैं. सिर्फ अगर मैं कीवर्ड्स बोलूँ, तो नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस है, यहाँ पे हम जो डालते हैं वो न्यूट्रिएंट्स है. फोर्टिफिकेशन में हमने न्यूट्रिएंट्स को डाला है. ओके, ये क्यों डालते हैं हम, पर्पस क्या है? ओके, एडिटिव्स के पीछे हमारा पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर और स्टोरेज प्रॉपर्टी. ये हमें इम्प्रूव करना है, इसलिए हम फूड एडिटिव्स में नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस डाल रहे हैं. यहाँ पे हमारा एम क्या है? टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल सम न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स. ओके, कुछ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स है जो हमें प्रिवेंट करने हैं या फिर कंट्रोल करने हैं. इसमें आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. तो कौन से, अभी योर फोकस इज ऑन दी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स जिसे हम प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं. तो यहाँ पे व्हाट यू कैन मेंशन इज आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. ओके, न्यूट्रिशनल एनीमिया कर सकते हैं ना. सेकेंडली, डेंटल केरीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, और जो इंडिया में नहीं प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन जिसके बारे में हमने बात की थी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. ओके, तो फॉलिक एसिड, अगर किसी को याद है, तो फॉलिक एसिड एडेड टू व्हीट फ्लोर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है. तो देर आर सेवरल कंडीशंस विच कैन बी प्रिवेंटेड. ओके, सेकेंड एम हमारा फूड फोर्टिफिकेशन में क्या है? टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड. ओके, तो हमें फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो बढ़ानी है. हमें यहाँ पे फ्लेवर, स्टोरेज, इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है. ओके, सेकेंडली, आप क्या डालते हो, दैट यू कैन राइट. थर्ड पॉइंट. ओके, से फॉर एग्जाम्पल फूड एडिटिव्स में हम डिफरेंट कलरिंग एजेंट्स डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स डालते हैं, स्वीटनर्स डालते हैं या फिर प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं. और यहाँ पे हम क्या डालते हैं? वी आर एडिंग ईदर विटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स. ओके, तो विटामिन में आप विटामिन वनस्पति घी का एग्जाम्पल दे सकते हो, विटामिन ए और डी के लिए. ओके, ट्रेस एलिमेंट्स के लिए आप आयोडाइज सॉल्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो. ओके, सो सॉल्ट फोर्टिफिकेशन विथ आयरन ये बोल सकते हो. ओके, so these are important thing. Even at some places niacin is also added to bread. okay, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है जिसे हम ऐड कर सकते हैं. ओके, लास्टली आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो. तो फूड एडिटिव्स में जो कुछ भी प्रोसेस्ड फूड आपको पता है उसके एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, जैसे कि ब्रेड है, बिस्किट्स है, आइसक्रीम्स है,
सॉफ्ट ड्रिंक्स है, केक्स है, जैम्स है, जेलीज है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वीट्स है, चॉकलेट्स है, ये सभी चीज़ें हैं जो आएंगी फूड एडिटिव्स के एग्जाम्पल्स में. एंड fortified foods में again we can say iodized salt, whatever different examples right now we discussed. Okay, तो उसे आप ऐड कर सकते हो. तो think from different aspect also. If difference is asked, how you are supposed to mention the difference between food additives and food fortification. Okay, one more thing we are going to consider today is adulteration of food. Okay, तो food adulteration कैसे किया जा सकता है. Okay, कौन से food materials है, कौन से food adulterants है जो हमें मिल सकते हैं. Okay, तो adulteration of food, another 5-mark question. Okay, तो there are various ways by which food can be adulterated. Okay, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एडल्ट्रेशन हो सकता है. ओके, तो मिक्सिंग हो सकता है. ओके, कोई 2 या 3 चीज़ों को हम मिक्स कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन हो सकता है. ओके, दूसरा जो एडल्ट्रेशन हम बोलते हैं कि जो फूड का क्वालिटी है वो कंसील किया है, वो रिवील नहीं किया है. ओके, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है फेस्टिवल्स के टाइम. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न, दैट्स व्हाट वी कैन से. ओके, तो पुटिंग दी डीकम्पोज्ड फूड्स फॉर सेल. ओके, तो जैसे कि मिल्क के बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं त्योहार के टाइम. ओके, तो वो सेल के लिए रखा है, वो डीकम्पोज फूड है और उसका सेल किया है. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग मिस ब्रांडिंग है या फिर फॉल्स लेबलिंग है. ओके, तो फूड में डाला कुछ है लेकिन लोगों को वो बताया नहीं है. सो इवन दैट इज फूड एडल्ट्रेशन. ओके, सो राइट नाउ फूड एडिटिव्स में हमने देखा था. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ फूड टॉक्सिकेंट्स है जो डाले हैं. ओके, सो देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर डिफरेंट वेज. Our focus is not to understand how we can do food adulteration, but our focus is how we can prevent food adulteration. Okay, तो food adulteration prevent करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन से फूड मटेरियल है जिनमें adulteration हो सकता है. ओके, तो समटाइम्स ये हेल्थ इंजुरियस भी हो सकता है, इसके बारे में कल हम बात करेंगे. ओके, तो इंडिया में वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अडल्ट्रेशन वी कैन सी. ओके, तो लेट्स हैव लुक ऑन दिस. ओके, तो लेफ्ट साइड में जो दिया है वो फूड मटेरियल है और कौन से एडल्ट्रेंट्स हमें मिल सकते हैं, दैट यू कैन सी इन राइट साइड कॉलम. ओके, तो जो भी सिरिल्स है, ओके, जो भी सिरिल्स है या फिर इवन यू कैन से मिलेट्स ऑल्सो. ओके, तर जे लोक धान्य घरी निवडतात त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी पटकन कळतील, रिलेटेड विथ सिरियल्स और मिलेट्स. ओके, तो इसमें क्या रहता है, मड रहता है. ओके, या फिर इसमें ग्रीट्स रहते हैं. ओके, बेसिकली दीज आर अनग्राउंड ओट्स. ओके, सो दैट यू कैन फाइंड, और यू कॅन फाइंड सोप स्टोन बीट्स. ओके, छोटे छोटे दगड असतात, म्हणजे दगडाचे तुकडे असतील, मातीचे छोटे छोटे तुकडे असतील, वॉट एव्हर इट मे बी, दॅट वी कॅन फाइंड. ओके, सो दिस इज कॉमन थिंग. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ वी टॉक अबाउट द पल्सेस और इफ वी टॉक अबाउट द दाल्स, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अडल्ट्रेशन जो आपको पता होना चाहिए, जो हेल्थ हजार्डस है, दैट इज मिक्सिंग ऑफ केसरी दाल विथ अदर पल्सेस. ओके, लाइक रेड ग्राम. ओके, या फिर बंगाल ग्राम, उसके साथ क्या किया है, केसरी दाल को मिक्स किया है. ओके, एंड रिगार्डिंग दिस ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, समटाइम्स कुछ डाइज है, कोल्टर डाइज, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड. ओके, टर्मरिक जो हम यूज करते हैं, ओके, टर्मरिक पावडर, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्मरिक पावडर. ओके, हळदीची जी पावडर आहे, सो यहाँ पे जो अडल्ट्रंट होता है दैट कैन बी लीड क्रोमेट पावडर. ओके, तो उसमें लीड क्रोमेट पावडर हो सकता है. धनिया पावडर, धना पावडर जी आपण घरामध्ये वापरतो. ओके, त्याच्यामध्ये मोस्ट पॉसिबिलिटी इज ऑफ कावडंग और हॉर्स डंग पावडर. ओके, शेणाचं, वाळलेले शेणाचे भाग त्याच्यामध्ये असू शकतो. ओके, और इट कॅन बी हॉर्स डंग ऑल्सो. समटाइम्स स्टार्च कॅन ऑल्सो बी ॲडेड. ओके, ब्लॅक पेपर, ब्लॅक पेपर म्हणजे काळी मिरी. ओके, काळी मिरीशी सिमिलर काय आहे तर पपया सीड्स. ओके, सो पपया सीड्स कॅन बी ड्राइड अँड दॅट कॅन बी मिक्स्ड विथ दी ब्लॅक पेपर. ओके, चिली पाउडर, जो चिली पाउडर हम यूज़ करते हैं उसमें पॉसिबिलिटी है
ऑफ ॲडिशन ऑफ ब्रिक पावडर. ओके, खाताना कचकच लागली की लक्षात येतं की त्याच्यामध्ये ब्रिक पावडर असू शकते. ओके, और सॉडस्ट. सॉडस्ट इज लाकडाचा भुसा. ओके, तो असू शकतो. सेकंडली टी है. ओके, टी लिव्स या फिर टी डस्ट जो आपण चहापत्ती वापरतो त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ॲडल्ट्रंट कॅन बी युज्ड टी डस्ट, म्हणजे चहाची पावडर वापरायची, ती वाळवायची आणि ती पुन्हा ॲड करायची. ओके, अँड इट कॅन बी सोल्ड टू दी पीपल. सेकंडली सॉडस्ट असू शकतं. थर्डली टॅमॅरिंड हस्क पावडर, म्हणजे चिंचोके ज्यांनी कुणी बघितले, चिंचोकेच्या वरचं जे टर्फल असतं त्या टर्फल ते दॅट इज हस्क. ओके, सो दॅट कॅन बी मिक्स्ड. किंवा दुसरा ब्लॅक कलर कशाचा आहे, ब्लॅक ग्रॅम. ओके, अख्खे उडीद तुम्ही बघितले तर त्याला पण ब्लॅक कलरचं कव्हर असतं. सो दॅट हस्क कॅन बी ॲडेड. ओके, तो याच्यामध्ये चिंचेचं किंवा मग उडीद जे आहेत त्याची टर्फलं असू शकतात. ओके, कॉफी सेम थिंग, टॅमॅरिंड हस्क कॅन बी देअर, इवन डेट हस्क कॅन बी देअर इन कॉफी पावडर. Okay, chicory is the plant. Okay, so that is also added to coffee powder. Then asafoetida हिंग जो आपण घरी वापरतो त्याच्यामध्ये प्लांटचे काही प्रोडक्ट्स लाईक गम्स अँड रेझिन्स. ओके, ते असू शकतं. किंवा ग्रीट, ऑलरेडी वी हॅव सेड अबाउट दिस, ते असू शकतं. राईट. मस्टार्ड सीड्स, अनदर इम्पॉर्टंट थिंग, मस्ट नो पॉइंट. ओके, वेन वी टॉक अबाउट मस्टार्ड सीड्स there is possibility of mixing of mustard seeds with argemon seeds. Okay, so don't forget this name, argemon seeds. Okay, argemon seeds, they contains harmful toxin. Okay, तो एक तो सीड का मिक्सिंग हो सकता है. सेकेंड, एडिबल ऑयल. एडिबल ऑयल में अगेन यू आर सपोज टू पे अटेंशन टू एडिबल ऑयल्स. जो हम ऑयल्स लेते हैं उसमें आर्जेमोन ऑयल को डाला है क्या. ओके, सो देर इज वन पॉसिबिलिटी इज मिक्सिंग ऑफ आर्जेमोन ऑयल विथ अदर एडिबल ऑयल्स दैट वी कंज्यूम रूटीनली. एंड सेकेंडली जो मिनरल ऑयल्स है जो एडिबल नहीं है वो एडिबल ऑयल में डाले हैं क्या. ओके, तो आर्जेमोन सीड्स, आर्जेमोन ऑयल, डेफिनेटली इट इज हैविंग हेल्थ हजार्डस इफेक्ट. ओके, तो ये हमारे लिए हजार्डस है. कैसे है कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं. ओके, सेकेंडली वी कैन सी अबाउट द बटर. ओके, सो बटर इट कैन कंटेन स्टार्च और इट मे कंटेन एनिमल फैट. ओके, ice cream, whatever ice cream we are consuming, okay, it may contain cellulose as adulterant. तो यहाँ पे जो सेल्यूलोज की बात हम करते हैं, दिस इज फूड एडिटिव. बेसिकली सेल्यूलोज जो ऐड किया जाता है वो बल्किंग एजेंट है. ओके, तो वो फूड का बल्क बढ़ाता है. फॉर दैट पर्पज इट इज एडेड. ओके, आइसक्रीम में स्टार्च हो सकता है. आइसक्रीम में नॉन परमिटेड कलर्स हो सकते हैं. ओके, सेकंडली स्वीट मीट्स, मिठाई जेव्हा आपण घेतो तेव्हा कलरफुल मिठाई आपल्याला अट्रॅक्ट करते. बट एट द सेम टाइम वी मस्ट नो, बिकॉज वहाँ पे बहुत बार कुछ पैकिंग नहीं रहता है, ओपन रहता है, डायरेक्टली वी परचेस इट. ओके, तो उसमें कुछ नॉन परमिटेड कलर्स हैं क्या, दैट वी आर सपोज टू सी. ओके, ग्रीन पीस के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी. ओके, डाई के बारे में. ओके, जो कलर इम्पार्ट करता है, फ्रेश दिखते हैं ग्रीन पीस. मोस्ट इम्पॉर्टंट इन इंडिया इज मिल्क. मिल्क का एडल्ट्रेशन कैसे होता है, तो बहुत कॉमन जो है दैट इज एडिशन ऑफ वॉटर. ओके, पाणी घालणं आपल्याकडे अत्यंत कॉमन गोष्ट आहे. सेकंडली वॉट वी कॅन सी इज स्टार्च को ॲड करते हैं. ओके, के पार्कने दिलेलं नाही आहे पण युरिया आणि बाकीच्या काही गोष्टी असतात त्या पण ॲड केल्या जातात मिल्कमध्ये. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज द एक्सट्रॅक्शन और रिमूवल ऑफ फॅट. ओके, तो फैट निकालते हैं लोग. तो ऑल दीज थिंग्स इट इज कंसर्न विथ एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क. ओके, घी बहुत कॉस्टली है, वनस्पति का कॉस्ट कम है, तो क्या करेंगे, घी और वनस्पति को मिक्स करेंगे. ओके, और अभी इंडियन मार्केट्स में कुछ फ्लोर्स है अवेलेबल है. ओके, तो ये फ्लोर्स जो है उसके साथ हो सकता है टैल्क पाउडर या फिर चॉक पाउडर जो रेडी मिलते हैं मार्केट में. ओके, तो उसमें टैल्क पाउडर या फिर चॉक पाउडर हो सकती है. यहाँ पे भी हमें कंट्रोल रखना है. सेम एक्ट है. ओके, PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट. ओके, तो अंडर दिस एक्ट देयर इज सेंट्रल कमिटी
ओके, सेंट्रल कमिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ओके, तो ये सेंट्रल कमिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस कमिटी विल रिवाइज द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिवाइज किया जाता है। जो लोग कंसर्न है रिलेटेड विद द फूड अडल्ट्रेशन उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके, तो लेबोरेटरीज है जहाँ पे हम फूड अडल्ट्रेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 4 इम्पोर्टेंट लेबोरेटरीज है जिसमें से एक पूना में है। ओके, जिसका हमारा विजिट रहता है, लेकिन शायद आपके बैच का नहीं हो पाएगा, आई थिंक सो। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट यू आर सपोज टू नो, तो अगर फूड एडल्ट्रेशन दिखाई देता है, ओके, तो अंडर दिस एक्ट देयर इज पनिशमेंट। तो जो डिफॉल्टर्स है उन्हें पनिश किया जाता है। ओके, जो लोग फूड एडल्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो प्रूवन एडल्ट्रेशन इट इज हैविंग पनिशमेंट। प्रूवन एडल्ट्रेशन इट इज हैविंग पनिशमेंट, और ये जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ्स की या फिर 1,000 रुपीज फाइन की हो सकती है। ओके, लेकिन अगर जो फूड एडल्ट्रेशन किया है वो हेल्थ हजार्डस है, जैसे कि एडिबल ऑयल में आर्जेमॉन ऑयल को डाला है, ओके, अगर ऐसा, या फिर लैथेरस सटाइवस को मिक्स किया है पल्सेस में, ऐसे अगर है तो फॉर दिस देर इज लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। ओके, एंड फाइन ऑफ ₹5,000। ओके, तो इसके ऊपर जो चेक रखा जाता है दिस इज कंसर्न विथ PFA एक्ट। Another important 2 mark question which is frequently repeated is food standards। तो इंडिया में हम कौन से फूड स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं? ओके, तो सबसे पहले यू कैन से कोडेक्स एलिमेंटेरियस। कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स है। दीज फूड स्टैंडर्ड्स आर रिकमेंडेड बाय फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इन्होंने जो रिकमेंड किया है वो फॉलो करते हैं। सेकेंड, PFA के जो स्टैंडर्ड्स है, अभी हमने जो एक्ट के बारे में बात की थी, जो कमिटी के बारे में बात की थी, ओके, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में जो सेंट्रल कमिटी है, ये सेंट्रल कमिटी जो फूड स्टैंडर्ड्स बनाती है वो फॉलो किए जाते हैं इंडिया में। ओके, एगमार्क स्टैंडर्ड्स है। एगमार्क अगर हम देखते हैं तो इट एंश्योर्स द क्वालिटी। ओके, तो जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से फूड का क्वालिटी है या नहीं है ये हमें पता चलेगा। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडिया इज BIS। दिस इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, सो दिस इज द ISI मार्क। ओके, ISI मार्क ऑन फूड आर्टिकल, अगेन इट गिव्स अस गारंटी ऑफ फूड क्वालिटी। ओके, तो ये जो 4 स्टैंडर्ड्स है वो इंडिया में हम फॉलो करते हैं। ओके, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो यू आर सपोज टू इंक्लूड these headings in your answer. Yeah. Now I just request Roman, please start with attendance. Yeah. Thank you. Yes, I can see him. He is present. He is present. Absent.
Excellent. Adiba might be having some audio problem. She is there. Yeah. Yes. He is there. He is there. Hmm. Yes, yes. I can see her name. I can see her name. Nikita. Join हुआ था विप्लव. He was there for a first meeting. I can't see her name. His name now. Meenal, Ruman, just one sec. Ruman, just one sec. Meenal Kakde, you are supposed to mention your roll number. Otherwise, I will remove tomorrow. Yeah. Thank you.